رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت پر عظیم فتح نصیب فرمائی۔ بزدل دشمن نے تاریخ رات سمجھ کر پاکستان میں 6 مقامات پر حملہ کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 3 رافیل سمیت 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ پاک فوج نے دشمن کا حملہ ناکام بنا کر تاریخ رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ روایتی جنگ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑنے کے دعوے داروں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا پوری قوم کو مبارکباد اور پاک فضائیہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ خطے میں عدم استحکام کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کونسل اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیے کے مطابق معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی شرمناک ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے جان بوجھ کر سچ چھپانے کی کوشش کی۔ کو بھی ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، مجھے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ ہم نے تو ان کے ملٹری ٹارگیٹس کو جو ہے ٹارگیٹ کیا ہے، ان کے جہازوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، مینلی انہوں نے سب جگہ سویلینز کو ٹارگیٹ کیا۔ پاک بھارت جنگ مزید آگے بڑھ سکتی ہے۔ گزشتہ رات کے مس ایڈونچر کے بعد بھارت پھر کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بھارت نے نیلم جہلم بجلی گھر پر حملہ کیا ہے، جواب تو دینا ہوگا۔ بھارتی آبی ذخائر کو نشانہ بنانا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر کسی طرح کا عالمی دباؤ نہیں ہے۔ بھارت نے پہل کی، ہم نے اس کا جواب دیا۔ دوبارہ جارحیت کی گئی تو دوبارہ جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان نے اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ 40 سے زائد ممالک سے رابطہ کر کے پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کو دنیا بھر نے سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا فیصلہ کیا تھا کہ بھارتی اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ موجودہ صورتحال کے پیچھے بھارت کی بدنیتی عیاں ہے۔ سندھ طاس معاہدہ دونوں فریقین کی رضامندی کے بغیر معطل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا ایئر فورس نے ایک بار پھر جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کا جواب دیا، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے۔ ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ پاک فضائیہ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بزدل بھارت کے 5 جنگی جہاز گرائے گئے، دوبارہ جارحیت کی تو مزید طیارے گرائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھارت کو واضح پیغام۔ قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بزدل بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملے کیے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بھارت نے پہل کی تھی، ہم نے وعدے کے مطابق جواب دیا۔ دنیا کو بتا دیا کہ بھارت مزید کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، کہا پہلگام واقعے پر تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اس بزدلانہ حملے میں اس نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہرائی۔ رات کی تاریکی میں مساجد، سول آبادی اور ہائیڈرو اسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ 26 شہری شہید، 46 زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، بتایا احمد پور شرکیہ میں 13 اور مرید کے میں مسجد پر حملے میں 3 شہری شہید ہوئے۔ کوٹلی میں مسجد عباس پر حملے میں 2 بچے شہید ہوئے۔ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا مودی کی تنگ نظر ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاک فوج نے بھارت کے حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ 3 رافیل، 1 MiG 29، 1 سکھوئی اور 1 کامبیٹ ڈرون مار گرایا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت کئی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔
पाक फौज ने दुश्मन की कमर तोड़ दी, भारत को हर मास पर बदतरीन शिकस्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की कई पोस्टें सफाए हस्ती से मिटा दी। कोटली सेक्टर में कोट कठेरा पोस्ट, गोल टेकरी पोस्ट और जबड़ी पोस्ट तबाह, पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई। भारतीय फौजी भागने पर मजबूर हो गए। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुआं निकलने के मनाज़िर। पाक फौज ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। सियालकोट सेक्टर के इलाके पखलिया में 4, बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में एक भारतीय ड्रोन मार गिराया। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 2 भारतीय ड्रोन्स नीचे उतार कर कब्जे में ले लिए। पाकिस्तानी कौम की हिमायत से पाक फौज का दुश्मन को बर्वक्त और मुंह तोड़ जवाब। बुज़दिल भारत के हाथ पैर फूल गए। भारतीय सुरमाओं ने कंट्रोल लाइन पर सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने बटल सेक्टर की 2 पोस्टों पर गुट्ठे टेक दिए। भारतीय फौज ने भारी नुकसान उठाने के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। इंडियन मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम की। हमने भारत के जंगी जहाज गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा की आलमी नफसियाती इदारों से गुफ्तगू। कहा, भारत ने बगैर शवाहिद के हमला किया। शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मजबूत इंटेलिजेंस की बदौलत भारत को फौरी जवाब दिया और भारत को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। भारत को हर मास पर शिकस्त का सामना है। मुसल्लह फौज ने भारतीय तैयारे गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत को मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया गया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि अमन के हामी हैं, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हर दहशत गर्दी के पीछे रॉ का ही हाथ है। भारत ने दोबारा हरकत की तो इससे सख्त जवाब मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, हमें अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है। भारत ने बुज़दिली का मुजाहरा करके आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज बहादुरी के साथ भारत के इक़दाम का जवाब दे रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल। भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फ़ज़ाओं में जलकर राख हो गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह ज़रूर है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मई में दुश्मन ने हमला किया, 28 मई 1998 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। जंग भारत ने शुरू की, खत्म अब हम करेंगे। मैली आंख को फोड़ देना पाकिस्तानी फौज पर फर्ज है। हमने दुश्मन की जारियत का जवाब सूद समेत अदा किया है। हम हमसाए बदल तो नहीं सकते लेकिन उसको इंसान का बच्चा ज़रूर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। सूबे के स्कूलों में छुट्टियों से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का फ़िलहाल फैसला नहीं हुआ, ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी है। भारत ने शहरियों पर हमलावर होकर बुज़दिलाना अमल किया। कौम मुत्तहिद और भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमन का दाई है लेकिन दिफा से गाफिल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत। बलूचिस्तान असेंबली में भारतीय जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। भारतीय खुफिया एजेंसी की तखरीबी सरगर्मियों और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़म्मत। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि पाक फ़ौज दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले 7 साला बच्चे इर्तिज़ा की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत की। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना भारतीय बुज़दिली का सबूत है। भारतीय खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तान का भारतीय जारियत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। भारतीय हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ख़ित्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से इटली के वज़ीर दाखिला की वफ़द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बिलाइश्तियाल फ़ौजी जारियत पर गुफ्तगू। सदर ज़रदारी ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल दिया। अतालवी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नताली बेकर्स की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया है। भारत ने शैनियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया मगर अपनी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर दुनिया भर में तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जंगी सूरत हाल की करीब से निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। चीन ने भी भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों फरीकों से अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में काम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क कशीदगी से गुरेज करें, किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती ज़राए तलाश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। कहा दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है। तमाम इदारे बाहमी ताउन से काम करते हुए मुल्की मईशत की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हंगामी इजलास में गुफ्तगू। शुरका का पाकिस्तान के इक़्तिसादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती मार्केट को इत्मीनान फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाने का आज़्म। पाक भारत कशीदगी के स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात। 100 इंडेक्स से 3,559 पॉइंट्स निकल गए। मार्केट 1,11,009 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 3,56,900 रुपये पर पहुंच गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।